and welcome children to social studies class. In our today's class, we are going to study about the administration of Delhi Sultanate. We have already studied about the five dynasties of Delhi Sultanate and how did the rule of the sultans ended. Today we are going to learn about the administration of Delhi Sultanate. Administration of Delhi Sultanate. Administration means how did the rulers, how did the sultans managed everything, how did which laws did they made, okay, what all policies did they follow, what were their strategies. So running the Delhi Sultanate was not an easy job. Running Delhi Sultanate was not an easy job. There were many difficulties which they had to face, right? There were many problems which were faced by sultans. The defeated rulers, like many of the Rajput rulers, often revolted against the Turkish rule. Okay, they used to face the attacks from Rajput rulers. Okay, sultans used to get the attacks from the Rajput rulers who were defeated. जिनको हराया हुआ हो वैसे लोग भी वापस अटैक करते थे. They often revolted against the Turkish rule. Okay. नोबल्स कंस्पायर टू ओवरथ्रो सुल्तान्स. नोबल्स है वो भी सुल्तान्स के सामने वो भी ऐसी प्लानिंग करते थे कि जैसे सुल्तान्स है वो उनका रूल कम हो जाए. ओके, they wanted to snatch away and overthrow sultans. So that was also the problem which sultans of Delhi Sultanate used to face. And there were several Mongol invasions from Central Asia. Mongols also used to attack. Okay, so let us take a closer look at some of the measures that sultans took to establish a strong government. अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो फेस कर रहे थे तो उसके लिए उन लोगों ने क्या क्या स्टेप्स उठाए, क्या मेजर्स लिए. राइट, सिक्योरिटी ऑफ द थ्रोन. हाउ डिड दे सिक्योर देयर थ्रोन. उनकी पोजीशन, उनका जो राज है वो कैसे वो लोग उसको सिक्योर करते थे. To help him remain in power and to overcome his enemies, Iltutmish organized a group of 40 Turkish बंदागन. ठीक है, अपने पावर को मेंटेन करने के लिए और अपने एनिमीज, अपने दुश्मन के सामने टिके रहने के लिए, उनको हराने के लिए इल्तुतमिश ने एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया था. 40 टर्किश बंदागन. बंदागन मीन्स स्लेव ऑफिसर्स. ठीक है, स्लेव ऑफिसर्स मीन्स द ऑफिसर्स ऑन जॉब. राइट, सो he appointed 40 Turkish bandagans. The group was called Bandagan-i-Turk. Bandagan-i-Turk. Chihalgani. Chihal means 40. Okay, Chihalgani or Chalisa in short. Okay, so there were 40 officers who used to protect the throne. Okay, who used to protect Iltutmish. By the time Balban became Sultan, okay, when Balban became Sultan, the Chihalgani had become very powerful. Chihalgani जो 40 ऑफिसर्स थे वो बहुत पावरफुल हो गए थे. एंड इट्स मेंबर हैड स्टार्टेड हैचिंग कॉन्स्पिरेंसीज. उसके खिलाफ
जो है उसके खिलाफ वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने लगे थे अगेंस्ट द सुल्तान। सो बलबन क्रश्ड द चिहलगनी। इसके लिए बलबन ने क्या कर दिया, चिहलगनी को पूरा तोड़ दिया। ओके, चिहलगनी को निकाल दिया। ही रेजिस्टेड एंड ही डिस्ट्रॉयड देम। ही इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन द कोर्ट। बलबन ने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द कोर्ट। कोर्ट में, दरबार में सबको डिसिप्लिन से रहना है। दिस इंक्लूडेड द पर्शियन कस्टम ऑफ जमीन बोस। This included the custom of Zamin Bos. This is lying flat on one's face before the Sultan to show the respect. मतलब जब आप सुल्तान के सामने जा रहे हो आपको झुक के जाना है और पूरा सर जो है वो ऐसे नीचे दंडवत प्रणाम करते हैं ना, वैसे उसको यू हैव टू लाई डाउन एंड यू हैव टू lying flat on one's face, okay, before the sultan to show respect. The sultan usually maintained a network of barids. The sultan usually maintained a network of barids. Barids means spies. Okay, spies का क्या होता है काम, जिसको बोलते हैं गुप्तचर, राइट। इन हिंदी वी कॉल इट गुप्तचर, जो छुप छुप कर पूरे सब चीज़ों पर ध्यान रखता है और फिर उसकी इंफॉर्मेशन सुल्तान को देता है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड स्पाइज। ओके, इंटरनली वो होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि ये सुल्तान का स्पाई है, राइट। सो द सुल्तान यूजुअली मेंटेन्ड अ नेटवर्क ऑफ बारिड्स, spies. The spies kept the sultan informed about all the happenings within the empire. पूरे एम्पायर में क्या हो रहा है, कौन कैसी बातें कर रहा है, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, ऑल द इंफॉर्मेशन वॉज रिपोर्टेड टू सुल्तान। नाउ रेवेन्यू. Revenue means income. Okay, so what is the income for the kingdom? Yes, income is tax, right? सो लैंड वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, किंगडम के लिए, सुल्तान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या था, लैंड। ओके, खर्च। द लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड एज अ शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड एज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अभी जो फार्मर्स होते हैं वो जो प्रोडक्शन करते हैं अपनी लैंड पे, उसके कुछ पार्ट का प्रोडक्शन उन्हें खर्च, एज अ खर्च उनको दे देना है। ओके, दे हैव टू सबमिट इट टू द एज अ टैक्स टू द सुल्तान, राइट। सो जो लैंड प्रोड्यूस है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, क्रॉप्स है, ओके, ग्रेन्स है, उनका जितना प्रोडक्शन हुआ उसके बेसिस पे कुछ फिक्स्ड उनका होता था, वो फिक्स्ड रेट ऑफ रेवेन्यू उन्हें देना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी हैड लैंड रीअसेस्ड, ही फिक्स्ड द रेट ऑफ रेवेन्यू। उसने रेवेन्यू रेट फिक्स किया था एट हाफ ऑफ द पीसन्स प्रोड्यूस। जितना भी पूरे खेत में जितनी भी फसल आई है, जितनी भी क्रॉप्स आई है, उसका आधा प्रपोर्शन उन्हें खर्च में देना पड़ेगा, आधा प्रपोर्शन टैक्स में देना पड़ेगा। अलाउद्दीन पेड हिज सोल्जर्स फिक्स सैलरीज इन कैश। ओके, अभी फार्मर के पास से वो उनके हाफ प्रोडक्शन लेते हैं, हाफ प्रोड्यूसेस लेते हैं, अपने सोल्जर्स को वो कैश में सैलरी देते हैं। दे पेड द फिक्स सैलरीज इन कैश। सो इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रेवेन्यू हैड टू बी पेड इन कैश। ओके, एंड द पीसन्स हैड टू सेल देयर प्रोड्यूस टू बी एबल टू पे द रेवेन्यू। ओके, पीसन्स क्या करते थे, उनको सेल करना है, अपने ग्रेन्स सेल करने, अपने क्रॉप्स सेल करने हैं। सो इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस revenue had to be paid in cash.
and the peasants, the farmers, had to sell their produce to be able to pay the revenue. Grain collected as revenue was stored in the food granaries. Okay, so farmers, if they are paying by giving the crops, by giving the production, their grains which were collected were stored in granaries. वो कठोर भंडार में डाल दिए जाते थे, राइट. सो grain collected as revenue was stored in granaries to meet natural crises like famines and floods. जब फ्लड आता है, जब बाढ़ होती थी या जब फेमाइंस होता था, ठीक है, ड्राउट होता था, तब ऐसी सिचुएशंस में ग्रेनरीज में से क्राइसिस जो है वो मैनेज किए जाते थे. स्कैरसिटी हो जाती थी तो वो मैनेज जो होता है वो ग्रेनरीज में से करते थे. इक्तास. ओके, इल्तुतमिश ग्रांटेड लैंड्स कॉल्ड इक्तास. ओके, लैंड वो देते थे जिसको वो बोलते थे इक्तास. ठीक है, इक्तास टू मेंबर्स ऑफ हिज आर्मी. वो क्या करते थे, अपनी आर्मी में से सिलेक्टेड लोगों को लैंड देते थे. पीसेस ऑफ लैंड, कुछ लैंड का हिस्सा देते थे टू द मेंबर्स ऑफ हिज आर्मी. इन रिटर्न द इक्ता होल्डर, यानी जो लैंड जिसको मिली है, कॉल्ड द इक्तादार और मुक्ति. ओके, जिस भी आर्मी सोल्जर को लैंड मिली है, ठीक है, जिस भी आर्मी वाले को लैंड मिली है, इन रिटर्न उनको क्या करना है, इन रिटर्न द इक्ता होल्डर और मुक्ति हैड टू गिव सुल्तान मिलिट्री हेल्प इन द टाइम्स ऑफ वॉर. यानी जब भी होता है, जब भी वॉर कंडीशन आती है, तब उससे जो है सुल्तान की हेल्प करनी है, उसे इल्तुतमिश की हेल्प करनी है. द मुक्ति वॉज आंसरेबल टू सुल्तान एंड हिज इक्ता वॉज ट्रांसफरेबल. अभी मुक्ति है, उसे वो आंसरेबल है सुल्तान को. ओके, ही इज आंसरेबल टू सुल्तान. एंड व्हेन द इक्ता वॉज ट्रांसफरेबल, ऐसा नहीं है कि लैंड सेम टू सेम ही रहेगी of the same to same holder. Okay, Iltutmish used to change the land holders. Okay, he used to change the land holders. सपोज जितने पीरियड तक उसे लैंड होल्डर के पास लैंड है, तब जब वॉर सिचुएशन आई तब उसे हेल्प करना है. फिर ऐसा भी हो सकता है कि इल्तुतमिश जो है वो दूसरी लैंड का पीस देंगे कि अभी आपको ये नहीं, आपको ये लैंड में दे रहा हूँ, ये लैंड में दूसरे सोल्जर को दे रहा हूँ. सो द इक्ता वॉज ट्रांसफरेबल. ओके, एंड ही कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम हिज इक्ता टू मीट द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग हिज ट्रूप्स एंड हॉर्सेस. इक्ता के पास से भी वो टैक्स लेते थे, पैसे लेते थे, राइट, to meet the cost of administration and cost of maintaining the groups. Troops means groups and horses. Okay, horses रखते थे, right. So आर्मी के कॉस्ट को, ग्रुप दूसरे स्टाफ के कॉस्ट को, सबको मेंटेन करने के लिए सुल्तान से वो अलग अलग प्रकार से रेवेन्यू लेते थे. द मुक्ति एंड हिज सोल्जर्स, the landholder, Mukti means landholder, Ikta holder, the Ikta holders and his soldiers and attendants camped at the Ikta headquarters. वो लोग इक्ता हेडक्वार्टर्स पे अपने कैंप बनाकर, अपने टेंट्स बनाकर रहते थे with their family members to ensure their safety. उनकी सेफ्टी के लिए दे फोर्टिफाइड द कैंप साइड्स. कैंप जहाँ कैंप्स है उसके आसपास उन लोगों ने वॉल बना दिया था. ओके, दे फोर्टिफाइड द टाउन्स. सो दे फोर्टिफाइड द कैंप साइड. सो इन ड्यू कोर्स द इक्ता हेडक्वार्टर्स grew into garrisoned and fortified town.
अब ये क्या हो गया था, गैरिसन एंड फोर्टिफाइड टाउन हो गया था. टाउन इज द सेंट्रल पार्ट. ओके, देर जो सुल्तान का फोर्ट है वो भी सेंट्रल पार्ट में है. उसके आसपास कैंप साइट्स है. ओके, और उसके आसपास कैंप साइट्स है, और वहाँ पर भी एक बड़ी सी वॉल बनी हुई है. राइट, और वहाँ पर सारे सोल्जर्स हैं. राइट, सो दिस वॉज द लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. राइट, टाउन है वो सेंट्रल पार्ट में, सुल्तान है वो सेंट्रल पार्ट में, उसका फोर्ट है, उसका रेसिडेंस है, सारा सेंट्रल में है टाउन. उसके आसपास ये सोल्जर्स की कैंप साइट है. राइट, और फोर्टिफाइड वॉल्स है. सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज गैरिसन टाउन एंड फोर्टिफाइड टाउन. ओके, यू कैन सी द सिमिलर thing in the movie Padmavat. If you have seen the movie Padmavat, you can have a view of Garrison town. Okay, it is shown in that movie. Such towns also grew where troops were stationed for defending the territories. ऐसे towns बनाते थे वो लोग जहाँ पर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है वो अरेंज किए हुए हो, वो वहीं पे रुकते थे, और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते थे, रक्षा करते थे. राइट, फॉर कॉन्करिंग मोर टेरिटरीज, और फॉर कॉन्करिंग मोर टेरिटरीज, और फॉर गार्डिंग द ट्रेड रूट्स. Mongol policy. Now, as we know that Mongols used to attack, right? Used to attack in India and Delhi. The policies of Iltutmish and Balban. Okay, these were the two rulers who were, they used to revolt back. Okay, they were successful in giving the answer to the Mongols. So Iltutmish was the first Delhi Sultan to face the Mongol menace. Okay, Iltutmish was the first to face the Mongol attacks. Okay, he saved इंडिया फ्रॉम मंगोल इन्वेशन. अभी इंडिया दिल्ली पे अगर मंगोल अटैक करते हैं, धीरे धीरे वो एक्सपांड करेंगे. इफ़ दे आर सक्सेसफुल दे विल एक्सपांड. सो Iltutmish fought back and he defeated the Mongol. He saved India from Mongol invasion by wisely refusing the shelter to the ruler of Iran. अभी एक ईरान के रूलर है, वो यहाँ पर शेल्टर देने, ऑफर देने आते हैं. तब इल्तुतमिश ने वेरी वाइजली ही रिफ्यूज्ड हिम टू गिव द शेल्टर. उनको रहने नहीं दिया. हु हैड बीन आउटस्टेड बाय मंगोल चीफ चंगेज़ खान. चंगेज़ खान है वो मंगोल का मेन लीडर है, चीफ है. उसके प्लान वे में ईरान का रूलर आता है. ओके, यहाँ पर ये यहाँ पर आता है और इल्तुतमिश के पास ऑफर लाता है और यहाँ पर रहने के लिए शेल्टर मांगता है. पर इल्तुतमिश रिफ्यूज़ कर देते हैं, और जिसकी वजह से इन्वेशन नहीं हो पाता है मंगोल्स का. बलबन बिल्ट फोर्ट्स टू गार्ड हिज एम्पायर. बलबन ने क्या किया, बड़े बड़े किले बनाए, बड़ी बड़ी दीवार बनाई, टू गार्ड हिज एम्पायर अगेंस्ट द पॉसिबल मंगोल अटैक्स, जिसके वजह से उसका एम्पायर की सुरक्षा अच्छे से हो पाई, क्योंकि सारे सोल्जर्स उसने डिफेंस वाले लगा दिए थे अराउंड द फोर्ट्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मंगोल अटैक्स. नाउ व्हाट वाज अलाउद्दीन्स policies. Okay, Alauddin Khilji's policies. Alauddin built new forts and repaired old ones. उन्होंने पुराने किलों की रिपेयरिंग कराई, मरम्मत कराई, रिनोवेशन कराया, और न्यू फोर्ट्स बनाए, न्यू किले भी बनाए. Along the northwestern frontiers, he also built a garrison town called Siri. उन्होंने सीरी बनाया, जिसे हम गैरिसन
टाउन कहते हैं। ऐसा है सेड कि आपको गैरिसन टाउन देखने को मिलेगा। अगर आप मूवी आपने देखा हो पद्मावत, उसमें आपको गैरिसन टाउन की एक झलक देखने को मिलेगी, राइट। सो अलाउद्दीन खिलजी made new forts and repaired old ones. He also built garrison town. I um, I already explained the arrangement of garrison town. Okay. His able generals drove back to the Mongol raiders. उन उसके जो जनरल्स थे, उनके जो आर्मी चीफ थे, उन लोगों ने मंगोल रेडर्स को, मंगोल लूटर्स और अटैकर्स को वापस भगाया था। ओके, उनके साथ लड़के उन्हें वापस भगाया था। हु रेडेड इंडिया सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द रूल। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन। हाउ was the army's administration? Alauddin Khilji was the first Delhi Sultan to maintain a well-equipped standing army. Okay, Alauddin Khilji was the Sultan who maintained a well-equipped, okay, अच्छे से हथियार सब अच्छे से थे। Okay, all the equipments were there with the standing army. He paid his soldier in cash and gave them important horses of good breed. ठीक है, अच्छे अच्छे घोड़े, मजबूत घोड़े। ओके, दिस हॉर्सेस वर इम्पोर्टेड, वो मंगवाते थे ऐसे हॉर्सेस। ठीक है, ही यूज टू इम्पोर्ट, ही यूज टू परचेज दैट काइंड ऑफ हॉर्सेस एंड दिस हॉर्सेस वर ब्रांडेड टू प्रिवेंट द थ्रेफ्ट. A detailed description of each soldier was kept to prevent the substitution. हर एक सोल्जर के का डिटेल्ड में उसके इंफॉर्मेशन और सब कुछ रखा जाता था, रिकॉर्ड रखा जाता था, सो दैट सब्सटीट्यूशन ना हो पाए, राइट. इकोनॉमिक मेजर्स. अलाउद्दीन फिक्स द प्राइसेस ऑफ ऑल एसेंशियल गुड्स. सारे ज़रूरत के सामान थे, डेली नीड्स के सामान थे, उनका रेट फिक्स करवा दिया था, सो दैट सोल्जर्स एंड अदर सैलरीड पीपल कुड अफोर्ड टू बाय दिस गुड. इसीलिए सोल्जर्स और कॉमन मैन है, सैलरीड पीपल है, उन्हें सब कुछ सब बेसिक जो आइटम्स है वो मिल सके. वेट्स एंड मेजर्स वर स्टैंडर्डाइज. सारे वेट्स और मेजर्स एकदम स्टैंडर्डाइज थे. एंड चीटिंग वॉज सेवियरली पनिश्ड. चीटिंग है वो सीवियरली पनिश करते थे, राइट. ही यूज टू स्ट्रिक्टली पनिश द चीटर. दिस मेजर्स बेनिफिटेड द सोल्जर एज वेल एज जनरल पब्लिक. इतना अच्छा मैनेजमेंट था जिसकी वजह से पब्लिक को और सोल्जर्स को बेनिफिट मिलता था. मोहम्मद बिन तुगलक्स पॉलिसी. शिफ्ट ऑफ कैपिटल. Muhammad bin Tughlaq shifted the capital to protect from Mongol attacks. Muhammad bin Tughlaq decided to shift the capital to a safe place from Mongol attacks. He chose Devagiri in Deccan and renamed it as Daulatabad. Okay, देवागिरी को चूज़ किया, ओके, डेक्कन में, और उसका नाम चेंज करके दौलताबाद रख दिया. ही बिल्ट अ रोड टू हेल्प द नोबल्स एंड ऑफिशियल्स शिफ्ट टू न्यू कैपिटल. रोड बनवाया ताकि सब नोबल्स और ऑफिशियल्स वहाँ पर शिफ्ट कर सके. बट व्हेन ही रियलाइज दैट ही कुड नॉट कंट्रोल द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, उसने जब रियलाइज़ किया कि नॉर्थ वेस्ट साइड से जो लोग अटैक कर रहे हैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल अगेन टू दिल्ली. ओके, ही शिफ्टेड द कैपिटल अगेन टू दिल्ली. दिस कॉज्ड हैवी फाइनेंशियल लॉस. इसके वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ. ओके, एंड ग्रेट हार्डशिप टू पीपल. सब लोग शिफ्ट हुए थे, उनको बहुत ही तकलीफ हुई. The Sultan also lost control over Deccan after shifting back to Delhi.
एक बार वापस दिल्ली में शिफ्ट हो गए, उसके बाद डेक्कन भी उनके हाथों से चला गया। ओके, उनका पावर, उनका कंट्रोल डेक्कन से चला गया। स्टैंडिंग आर्मी। मोहम्मद बिन तुगलक प्लान्ड अ मिलिट्री कैंपेन इन सेंट्रल एशिया टू स्टॉप मंगोल एक्सपांशन। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक मिलिट्री कैंपेन प्लान किया। ओके, जिसमें इन सेंट्रल एशिया में वो सारे मिलिट्री के लोग, सोल्जर्स लेके गए अपनी पूरी टेरिटरी के, टू स्टॉप द मंगोल एक्सपांशन, जैसे मंगोल एक्सपांड नहीं कर पाए। ही रेज्ड अ ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी फॉर दिस पर्पस। स्टैंडिंग आर्मी उन्होंने बिठाई, जगह जगह चप्पे चप्पे पे सोल्जर्स खड़े करवा दिए। ही हाउएवर हैड टू गिव अप द प्लान आफ्टर स्पेंडिंग हेवीली ऑन द अरेंजमेंट। बहुत अच्छे से उसने पैसे खर्चे थे, बहुत अच्छे से पैसे स्पेंड किए थे, बट ही हैड टू ड्रॉप हिज आइडिया, हिज प्लान, बिकॉज द प्लान डिड नॉट वर्क। Economic measures. Okay, what were the economic measures taken by Muhammad bin Tughlaq? To meet the expenses of Muhammad bin Tughlaq of the army, Muhammad bin Tughlaq increased the land tax. आर्मी के एक्सपेंस मैनेज करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्स इंक्रीज कर दिया इन द गंगा यमुना दोब। गंगा यमुना रिवर साइड उसने लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया। मैनी फार्मर्स रोज इन रिबेलियन, काफ़ी फार्मर्स ने विरोध किया। ओके, दे वर रूथलेसली क्रश्ड, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और उन्हें पनिश किया गया। एंड लार्ज एरियाज वर लेड वेस्ट। ओके, रिजल्टिंग इन फेमाइन कंडीशंस, जिनके वजह से अभी फार्मर्स को पनिश किया, फार्मर्स को किल किया, जिसकी वजह से लैंड है वो वेस्ट गई, क्योंकि लैंड में प्रोडक्शन किया नहीं, और जिसकी वजह से फेमाइन कंडीशन हो गया। ओके, फेमाइन मीन्स अ कंडीशन वेयर देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ फूड। ओके, सो द सुल्तान हैड टू प्रोवाइड 6 month सप्लाईज फ्रॉम द रॉयल ग्रैनरी। फिर अपनी रॉयल ग्रैनरी में से, अपने स्टोरेज में से, ग्रेन स्टोरेज में से, स्टोर हाउस में से उन्हें 6 month की ग्रेन सप्लाई देनी पड़ी। राइट, एट द वेरी चीप रेट्स, बहुत ही सस्ते भाव में उसे सब पूरी पब्लिक को प्रोवाइड करना पड़ा। फार्मर्स हैड टू बी गिवन लोन्स, और वापस फार्मर्स को भी पैसे दिए, जो दूसरे फार्मर्स थे उनको भी पैसे देने पड़े, ताकि वो अपना कल्टीवेशन करें, अपना खेती बाड़ी करें। इसीलिए हमें ये पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं काम नहीं कर रही थी, जिसके वजह से उसे काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू प्रिजर्व गोल्ड एंड सिल्वर, उसे गोल्ड और सिल्वर अपने पास रखना था। राइट, ही वांटेड टू प्रिजर्व द गोल्ड एंड सिल्वर। So to meet the expenses of his planned campaigns outside his empire, ओके, उसे गोल्ड और सिल्वर अपने पास प्रिजर्व करके रखना था। क्यों रखना था? टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ हिज प्लान्ड कैंपेन्स, जो वो अपने प्लान्स करता था। ओके, आउटसाइड द एम्पायर ही हैड मैनी कैंपेन्स, he had many strategies going on. So for meeting that expenses, he wanted to preserve the gold and silver. So within his empire he introduced, इसीलिए उसका जो टेरिटरी है within the empire, within the Indian empire, he introduced bronze token coins. Bronze token coins, उन्होंने क्या किया, ब्रॉन्ज मटेरियल के, ब्रॉन्ज मेटल के कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, वो टोकन कॉइन्स एज अ करेंसी यूज़ करवाए। ही हाउएवर फेल टू चेक द लार्ज स्केल फॉर्जरी ऑफ द ब्रॉन्ज कॉइन्स, जिसके वजह से क्या हुआ कि
ब्रॉन्ज कॉइन्स की नकल होने लगी. यू नो, इन आवर मॉडर्न टाइम, इन टुडेज टाइम ऑल्सो, नोट इज बीन कॉपीड, फेक नोट्स आर बीन प्रोड्यूस्ड. तब के टाइम पे भी ब्रॉन्ज टोकन कॉइन्स, फेक ब्रॉन्ज टोकन कॉइन्स मार्केट में आ गए. ओके, सो दिस ही फेल टू चेक अपॉन द लार्ज स्केल. बड़े पैमाने में फॉर्जरी हो गई. ओके, फेक कॉइन्स आ गए. ओके, ऑफ ब्रॉन्ज कॉइन्स. दिस द वैल्यू ऑफ करेंसी फेल शार्पली. इतनी सप्लाई हो गई. जब सप्लाई इंक्रीज होती है तब डिमांड और प्राइस डिक्रीज होती है. तो बिकॉज ऑफ द फेक कॉइन्स एंड बिकॉज ऑफ द ओवरफ्लो ऑफ द करेंसी, द वैल्यू ऑफ करेंसी फेल शार्पली. वैल्यू कम हो गई. ट्रेड सफर्ड, जिसकी वजह से ट्रेड पे असर आया. ओके, धंधे पे असर आया. एज अ फॉरेन मर्चेंट स्टॉप बिजनेस. फॉरेन में से जो बिजनेस करते थे उन लोगों ने अपना बिजनेस, अपना ऑर्डर्स नहीं दिया, अपने बिजनेस लिंक तोड़ दिए. द सुल्तान हैड टू विड्रॉ द टोकन करेंसी. जिसके वजह से सुल्तान को रियलाइज हुआ और सुल्तान ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी टोकन करेंसी को विड्रॉ कर लिया. ओके, सारी वापस ले ली, सारी कैंसिल कर दी. एंड पे द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इन एक्सचेंज. अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं गोल्ड और सिल्वर में ही पेमेंट करूँगा. ओके, दिस कॉज्ड अ हैवी फाइनेंशियल लॉस. इसकी वजह से बहुत ही फाइनेंशियल लॉस हुआ. मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी में उसे बहुत लॉस हुआ. पहले शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल में लॉस हुआ, फिर स्टैंडिंग आर्मी में, आर्मी कैंपेन में लॉस हुआ, फिर दूसरी जो उनकी थी इकोनॉमिक मेजर्स उनमें उनको लॉस हुआ. ओके, सो ही फेस्ड अ ग्रेट लॉस. ओके, सो इन दिस lecture we studied about the administration of sultanate. How did sultans manage everything? Okay, different rulers managed it differently. अलग अलग रूलर्स, अलग अलग सुल्तान्स की अलग अलग स्ट्रेटजीज थी. उसमें हम लोगों ने मेनली जो थे सुल्तान इल्तुतमिश की स्ट्रेटजी पढ़ी, बलबन की स्ट्रेटजी पढ़ी, अलाउद्दीन खलजी की स्ट्रेटजी पढ़ी. ओके, और हमने अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज भी पढ़ी. राइट, वी सॉ द style of management, the strategy of management of Iltutmish, Balban, Alauddin Khalji and Muhammad bin Tughlaq. Okay, hope you have understood the chapter. If you have any doubts, any queries, you can contact me in the given time, that is from 9 to 12. I hope you understood this chapter. Do take care of yourself. Bye.